گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ذکر کرنے والے، جو عقل والے ہیں۔ قرآن سے پوچھا جائے، قرآن پاک سے، کہ عقل والے لوگ کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ کھڑے ہوئے ہیں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سو رہے ہیں کروٹ بدلتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل والے یہ لوگ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے انسانوں، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے آلہ ہے۔ کپڑا میلا ہوتا ہے صابن سے صاف کرتے ہو، سرف سے صاف کرتے ہو۔ دل اگر میلی ہو جائے، دل میں اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے۔ جب ہم ابھی اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح کہ اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس کا ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے کام تو ہمیں یاد ہیں لیکن اللہ کا نام یاد نہیں ہے، بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت بندوں کے اوپر مقرر کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کھولے، ترجمہ دیکھیں۔ آپ کہیں گے، ہر ایک یہ کہے گا، میں بھی کہوں گا، کہہ سکتے ہیں بھئی اگر عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کرو، بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، مسجد میں بیٹھو، تو یہ دنیا کا کاروبار کیسے چلے؟ پر بیوی بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، وہ کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میری ہی عبادت کرو۔ اب ایک بندہ فیملی والا ہے، بچوں والا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، دنیا میں رہنے کا مسئلہ ہے، وہ کیسے حل کرے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے دیا، فرمایا جو بندہ مزدوری کر رہا ہے، جو مزدوری کر رہا ہے نا، دہاڑی پر کام کر رہا ہے، فیکٹری والا کام کر رہا ہے، کارخانے میں جو اپنے کام کر رہا ہے، سمجھا صحیح، وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے کہ یار کچھ تنخواہ ملے گی، گھر والوں کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ کام کرتے کرتے اللہ کا نام سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ اب اس بندے کو چھوڑ دیا، توجہ کرنا، دکان کو چھوڑ دیا، دکان کو تالا لگا دیا، کام کاج کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کی طرف آ گیا، عبادت کی، نماز پڑھی، پھر چلا گیا کام دھندے کی طرف، پھر آزان ہوئی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، پھر کام کو چھوڑ کر عبادت کے لیے۔
क्या माना? बच्चों का हक भी अदा कर रहा है, तवज्जो करें, बच्चों के मसला भी हल कर रहा है, रोजगार का मसला भी हल कर रहा है, अल्लाह की इबादत भी कर रहा है। अब इस शख्स की मजदूरी करना इबादत है, इस शख्स का ऑफिस में भेजना इबादत है, क्योंकि वो हुकूकुल्लाह भी अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहा है। ये मतलब है इबादत का। समझे नहीं? खाओ पियो ऐसे, बस खाओ पियो, ये जिंदगी हमारी। अल्लाह की इबादत की तरफ तवज्जो नहीं, सजदे की तरफ तवज्जो नहीं कि सजदा करना है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा कुर्ब हासिल होगा सजदे से, सजदा करोगे तो मेरा कुर्ब हासिल होगा। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और मेरा कुर्ब हासिल करो। अल्लाह ताला ने कितनी हिकमतें पैदा फरमाई, नमाजों में कितनी हिकमत है अजीजों, तरावी में कितनी हिकमत है। जरा सोचे तो सही, जब बंदा इफ्तारी के वक्त खूब खाना खाता है, खूब खाना, खूब शरबत भी पिया, खाना भी खाया, पेट भर गया, खूब पेट भर गया, अब पेट भर गया ना, अब इस बंदे को कहा गया कि तरावी पढ़ो, नमाज पढ़ो, उठक बैठक करो, तुम्हारी जो शुगर बढ़ गई थी वो शुगर लेवल पे आ जाए। 20 रकात पढ़ो, उठक बैठक करो, जो तूने ज्यादा खाना खाया, ज्यादा पानी पिया, वो उठक बैठक की वजह से शुगर अपने लेवल पे आ जाएगी, याद रखो। और दूसरी बात, एक तो उठक बैठक से शुगर लेवल पे आ जाती है, दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर सजदे से कम हो जाता है। सजदे करने से किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, तो उसको मशवरा दे दो कि कारी साहब ने, उस्ताद ने कहा है तो मैं सजदे करो, नमाज पढ़ो तो लेवल पे आ जाए, तो ब्लड प्रेशर लेवल पे आ जाए। अल्लाह ताला ने हिकमतें रखी है नमाजों में अजीजों, समझे? अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से पूछो कि भाई जन्नत में जाने वाले कौन हैं और जहन्नमी लोग कौन हैं, जन्नत का रास्ता क्या है और जहन्नम का रास्ता क्या है, पूछो कुरान से। वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये इताअत करने वाले, ये जन्नती लोग जो इताअत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले, वो कहां होंगे, उनका ठिकाना कहां होगा? फरमाया अंबिया इकराम के साथ होंगे वो, के दोनों सुभान अल्लाह, अंबिया इकराम के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। इताअत करने वाले, अल्लाह का हुक्म आ गया कि रोजा रखो, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अल्लाह की इताअत कर ली, अल्लाह के रसूल की इताअत कर ली, फर्मा बरदारी कर ली, हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। अब इताअत की, फर्मा बरदारी की, इनको क्या मिलेगा, इनको हदिया के क्या मिलेगा, इनको सिला क्या मिलेगा? फरमाया इनका ठिकाना अंबिया किराम के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा और सालीन के साथ। इताअत करने वाले, रोजा फर्ज है, रोजा अल्लाह का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे फर्ज है तुम्हारे ऊपर। एक आदमी झूर है, बूढ़ा है, रोजा नहीं रख सकता, अब करीबुल मर्ग है, याद करें, अब बिस्तर पर है, अब कोई चारा ही नहीं, 100 साल का हो गया, अब नहीं रख सकता, अब बीमार है, लाचार है, अब क्या करे? अब उसके ऊपर ये कि फिद्या दे दे, फिद्या दे। अगर ठीक ठाक बंदा है, जैसे हमारे भाई बीमार पड़ गया, शरीयत ने इजाजत दी है कि चलो बीमार है, नहीं रख सकते, अब जब तंदुरुस्त हो जाओ तुम, रमजान के बाद, रमजान मुबारक के बाद फिर रोजा कजा करके रखना, बाद में रखें। कितनी इजाजत दी, और अक्सर करके 90% लोग
ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, फिर भी रोजा नहीं रख रहे। अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। नमाज का अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, रोजे रखो, ज़कात दे दो। बार बार हुक्म और आ रहा है कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो। हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं, परवाह ही नहीं है। महमूद और अयाज के वाक़यात आते हैं किताबों में। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। सामने ऐसा लड़का था, समझदार था, बादशाह पर उसको प्यार आ गया, बादशाह को मोहब्बत हो गई उससे। एक दफा कहा कि वो जो वजीरों की मजलिस थी, वो अयाज में बैठा हुआ था कि वो जो मोती है ना, वो यगाना मोती जो है, वो मोती ले आओ और मेरे सामने उसको तोड़ो। क्या समझ नहीं? वजीरों की मजलिस है, वो अयाज में बैठा हुआ, वो महल में, वो खजाने में जो मोती रखा है उसको ले आओ, उसको तोड़ दो। वजीर उठो, भाई मैं तो नहीं उठता, भाई कीमती मोती है, मैं इसको कैसे तोड़ू? अरे तू उठ जा। दूसरा वजीर, तीसरा वजीर, एक एक वजीर को कहा गया कि तुम तोड़ो। कि नहीं सही, एक ही मोती है आपके महल में, आपकी बादशाही में एक ही मोती है, हम उसको कैसे तोड़े? हम नहीं तोड़ सकते। सबने जवाब दिया, अयाज उठो, ले आओ मोती। अयाज जो गया कि वो मोती जो खजाने में पड़ा था वो उठाकर उसको तोड़ दिया, हथौड़े से टुकड़े टुकड़े हो गया। वजीर हैरान हो गए, ये क्या हो गया? ये जाना मोती, और तोड़ दिया उसको। पूछा गया अयाज से, क्यों तोड़ा? और इन्होंने नहीं तोड़ा, वजीरों ने नहीं तोड़ा, तूने तोड़ा, तुमने तोड़ा, उसको टूट गया। तो अयाज कहता है कि तुमने मोती को देखा, चाचे तुमने मोती को देखा, मोती वाले को न देखा कि हुक्म किसका है। अरे तूने देखा मोती को कि मोती कीमती है, इससे ज्यादा कीमती तो उसका हुक्म था। जो मोती वाला है, जो हाकिम है, जो बादशाह है, उसका हुक्म तूने तोड़ा, तुम तो नाफरमान। बादशाह यही आयात है, यही आयात है। अल्लाह के हुक्म को हम तोड़ रहे अजीजों। अल्लाह का हुक्म है रोजा रखो, परवाह है हमें। नाश्ता भी चल रहा है, दोपहर का खाना भी चल रहा है, चाय भी चल रही है, सिगरेट रोशी भी चल रही है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ नहीं रही है। अल्लाह के अजाब को हम दावत नहीं दे रहे अजीजों। होटलें खुली हुई है, मुसलमानी है, इस्लाम है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। दुरूद शरीफ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफा बादशाह के वजीरों ने कहा कि अयाज आपकी मस्जिद से उठकर अपने कमरे में जाता है, गरीब मिस्किन था, अपने कमरे में जाता है, ये कोई चीज चुरा कर जा रहा है। कौन? अयाज। अयाज अपने आपकी मस्जिद से उठकर, आपकी खिदमत से उठकर अपने कमरे में चला जाता है, कोई ना कोई चीज चोरी करता है। आदमी हसद से बचे, तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए, अल्लाह ताला गीबत से बचाए, चुगली से बचाए। आप अलैहिस्सलाम, इस वाक़े को याद करना, आप अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से जा रहे थे और कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो देखा कि दो शख्सों को अजाब हो रहा है। याद है आपने फरमाया कि दो शख्सों को अजाब हो रहा है। एक शख्स वो है, ये शख्स वो था जो अपने आप को पेशाब के कतरों से नहीं बचाता था, वो शख्स है। दूसरा शख्स चुगली लगाता था, जिसे अयाज के वजीर ने कहा
اپنے کمرے میں جاتا ہے، کوئی چیز لے جاتا ہے،